आज हम लोग एक प्रॉब्लम तो पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। Mr. Amitavo owns 2 houses in Kolkata. The first one is used for self-residence. The second house, consisting of the 2 flats of equal size, is let out to the tenant rupees 7,000 per month per flat for the residential purpose. Construction completed, municipal tax, insurance premium. Vacant period बोल दिया है। Additional information में बोल दिया, he borrows rupees 6 lakh for construction of the first house at the rate of 10% per annum on 1/9/2017. He also borrowed rupees 8 lakh for the construction of the second house at the rate of 12% on 1/3/2016. He paid interest regularly. Both loans remain outstanding. Calculate income from house property. तो पहले काम क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स, solution, computation of income from house property for the previous year 2020-21 and assessment year 2021-22. हाउस वन क्या है? हाउस वन का सिचुएशन सेल्फ ऑक्युपाइड, annual value under section 23 subsection बोल सकते हो? 2 Good. Nil. Less. Interest on loan under section 24 subsection B. Interest. Working note 1. Calculation of थोड़ा मुझे हेल्प। Loan taken rupees how much? At the rate of, what is the percentage? 10%, 1917.
PCP क्या होगा? कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 18/8/2016, 1917 लोन लिया है 1917, सो पीसीपी पीरियड 19/2017। आई थिंक चार्ट है क्लास में, चार्ट ओके। 19/2017 to 31/3/19 so 19 ना सर 19 होगा सर। सॉरी भूल लिखा था। पीसीपी का पीरियड बोलो सर। 19/2017 to 31 ना 19/2018 सर। स्ट्रेट वे में 1 years 12 months, then 1/9/2018 to 31/3/2019 कितना? so 7 months 7 months total। डन। पीसीपी इंटरेस्ट बोल बेटा। 6 लाख so 6 lakh into 10% into 10% into 19/12 बोलो कितना? 95,000। 95 95 उसको पीसीपी इंटरेस्ट का 1/5 मिलेगा। यस yes sir 1/5। अच्छा पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट कर लेते हैं। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना? full year 6 lakh 10% सॉरी 6 lakh into 10% क्वालिफाइंग इंटरेस्ट करंट ईयर इंटरेस्ट कितना बेटा? 60 2020-21 के लिए कितना? 60,000 60,000। और पीसीपी इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट 1/5 1/5 पीसीपी इंटरेस्ट कितना? 1/5 into 95,000। I think 19। Yes or no? yes sir Gross amount, statutory limit, ब्रैकेट में all conditions satisfied कितना बेटा? 2 2 lakh। lakh Yes or no पंकज? सर कंस्ट्रक्शन पंकज हेलो deduction for interest for self occupied house property कितना होगा? 79 income from house property
House 1. House 2. Let out. Gross annual value. Working note 2. Municipal value. Gross municipal value कितना? सर निकालना होगा इनडायरेक्ट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू सर क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स बोल दिया है 21,600। याद है, कराया था। यस सर। 21,600 into 100 by 15 into कोलकाता में yes 100 by 90। 21,600 divided by 15 divided by 90 into 100 into 100 1,60,000। 1,60,000। स्टैंडर्ड रेंट कुछ बोला है सर? और तो कुछ नहीं बोला है। नहीं है सर। फेयर रेंट भी नहीं है। ओके, तो आरईआर उपाय तो नहीं है। बेस्ड ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू assuming that gross municipal value is more than fair rent, so 1,60,000 rent received बोलो कितना रेंट रिसीव? यहां पर दिया नहीं है। रेंट रिसीव को बोला है घुमा के। 2 फ्लोर है, 2 फ्लैट है जो 7,000 में रेंट दिया जाता है। 1 फ्लैट 3 मंथ्स के लिए वैकेंट है, तो क्या होगा? 7,000 into 12 plus 7,000 into 9। समझ में आया और नॉट? समझ में आया और नॉट? यस सर। 1,47,000। एक फ्लैट पूरा 12 महीना था, 7,000 into 12। दूसरा फ्लैट 9 महीना था, 7,000 into 9। डन। 1,47,000। Reasonable expected rent, rent received. Vacant period rent. Vacant period rent, how much? 7,000 into 3. Sorry? 7,000 into 3 months. Into 3 months. ये 1,40,000 obviously less than RER, yes or no? Yes, sir. तो rent receipt plus vacant period rent, VPR मतलब vacant period rent, ओके? क्या होगा? 1,68,000। 1,68,000.
1,68,000, which is more than RER. So applicable rent received is lower than RER due to vacancy, period rent, annual value, lower of rent received and RER. ये तो वैकेंसी के रीजन है, मतलब एक्सेप्शन प्रोविजन लगेगा कितना 1,47,000. क्लियर और नॉट? delete 1,47,000. $21,600 municipal tax paid. Municipal tax paid 21,000 net annual value. Follow minus 21,600, 1,25,400. Less deduction under section 24. Statutory deduction 30% of net annual value 1,25,400. 37,620. 620. B. Interest on loan. Working note 3. WN3. Interest on loan. That is house 2. बोलो 1,316. Pre-construction period कब होगा? 1/3/2016 to 31,360. yes or no? 1/3/16 जब से लोन लिया है तो सर 1 कितना महीना ही हुआ. हाँ 1 महीना. कितना हुआ? 1 month. 1 month. PCP interest
into 12% into 1 by 12 कितना 8,000. हाँ 8. current year interest $96. 96 बोलो क्या होगा 96,000 नाउ फर्स्ट अब सवाल आएगा क्या टीसीपी इंटरेस्ट उसको मिलेगा यस और नो बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 16 तो फर्स्ट कंप्यूटेशन होगा 16 17 यस और नो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन होता है जिस साल में उसका कंप्लीशन हुआ है तो 16 17 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीसीबी का मिलेगा 16 17 देन 17 Yes, sir. 18 18 19 19 20 20 21 मतलब दैट ईयर इज द लास्ट ईयर जब उसको मिलेगा ओके दैट इज द लास्ट ईयर उसको मिलेगा सो 1/5 ऑफ 8,000 कितना 1600 कोई स्टैट्यूटरी लिमिट है नो लिमिट क्लासे আছি পড়াশোনা করছি আমি ক্লাসে আছি कितना होगा नो लिमिट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बोलो सर पूरा ही दैट इज 97,600 चलो 97,600 करते हैं 97,600 कितना आ रहा है 97 1,35,220 हाँ 1,35,220 माइनस करने के बाद कितना आएगा 9,820 9,000 820 बोलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 88,820 डन सर माइनस होगा और एल्स लॉस लिखो सर हाँ सर कल का पहला क्लास में जो एक होमवर्क था वो करा दीजिए ना सर कल का क्वेश्चन नंबर 3 जो होमवर्क था सर उसको करा दूं हाँ सर वो थोड़ा सा घुमा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कहां से मिलेगा सर कल के पहले वाला क्लास में जाइए मिल जाएगा इदारा एक चीज कर देता हूं दैट इज मुझे लग रहा है करना चाहिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इन कोलकाता म्युनिसिपल टैक्स rupees 21,600 is calculated
on net municipal value at the rate of 15%. So net municipal value equal to how much? 21,600 into 100 by 15. 21,600 into 100 by 15. How much? 1,44,000. So gross municipal value, net municipal value equal to gross 90% of gross municipal value. So gross municipal value equal to 1,44,000 by 90%. no. Net municipal value divided by 90%. That is equal to 1,44,000 divided by 90%. 1,60,000. 90% मतलब into 100 divided by 90. That is equal to 1 lakh. Okay. 60,000. जो डाउट Yes, था sir. मैंने क्लियर कर दिया. डन. Yes, sir. अच्छा, मेरा सवाल जो रहता है रंजीत का, ये सवाल ये मैं थोड़ा एक बार बता देता हूं. हाउस वन यूज होता है फॉर सेल्फ रेसिडेंस ऑफ द टेनेंट. तो अगर रेसिडेंस यूज फॉर द टेनेंट तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी. हाउस टू का बोलिए तो क्या होगा? सर वो भी हाउस प्रॉपर्टी होगा. वेरी गुड सर. वो एसएससी का बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, टेनेंट का बिजनेस के लिए. अल्टीमेटली आपने तो किराया ही दिया है. यस सर. ओके, इट इज नॉट यूज फॉर एसएससी बिजनेस. इट इज एसएससी बिजनेस में नहीं हो रहा है. टेनेंट का बिजनेस में टेनेंट बाहर में जाए, जो चाहे करे. मेरा टैक्सेबिलिटी होगा अगर मुझे इनकम मिलता है फ्रॉम लेट आउट, तो लेट आउट से इनकम रेंट मिल रहा है तो टैक्सेबल. और हाउस थ्री मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो आराम से मेरा नील होके हो जाएगा. आई थिंक ये आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा. यस और नो? यस यस सर. और नो? Yes, sir. एरिया रेंट भी एक है, बाकी सब सेम है. अच्छा, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं. जहां पर मेरा 3 हाउस ही सेल्फ रेसिडेंस है. 3 हाउस ही मेरा सेल्फ रेसिडेंस है. तो मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगा? पहले 2 हाउस को क्या करूंगा? पहले 2 हाउस को मैं लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड मानूंगा. हाउस 2 एंड हाउस 3. एंड हाउस 1 को मैं क्या मानूंगा? लेट आउट. लेट आउट करके हम लोग सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है? यस सर. चलिए, अब ताज जो मुझे बोल रहा है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टाइम मेरा नहीं है. इसके बाद किसका क्लास है? SB sir था. एसबी सर है. बहुत डांटेगा मुझे. आज 9 नंबर क्लास है ना. आई थिंक अब्दुल का प्रॉब्लम. हाँ अब्दुल का सर. अब्दुल है ही बड़ा कंफ्यूजन. वो बाबा, हाँ यही सर. उसका प्रॉब्लम भी कंफ्यूज्ड. अच्छा,
लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम अभी सॉल्व होगा, देखते हैं। सर खाली इतना बता दीजिए, पार्ट ऑफ द मुझे तो थोड़ा पढ़ने दे। Mr. Abdul owns 3 houses at Ranchi. He furnished the following particulars for the previous year 2021. House 1. The house was constructed in 2019 and let out to his friend at a monthly rent of 10,000 up to 31/1/2021. I repeat, constructed 2019 and let out to his friend at a monthly rent 10,000 up to 31/1/2021, and thereafter it was a let out at a fair rent 15,000. बोल भी दिया है fair rent में, okay. He paid 15,000 as municipal tax. He paid also fire insurance, okay. House to ground rent let out, ground floor let out 20,000. First floor identical, occupied by him, first class. House 3 was constructed in 2010, used for business. The annual value of the house is 1 lakh and municipal tax इतना. तो क्या करना है? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए। हाँ ठीक ही है सर जो इंटरेस्ट होगा सर वो अलग अलग करके ही ना देंगे सर दोनों को। मतलब 4 लाख का इंटरेस्ट रेट 16,2000 में लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2, ओके। सर हाउस टू सर पार्ट ऑफ कंप्लीटेड, एक पार्ट यूज कर रहा सेल्फ ऑक्युपाइड, एक लेट आउट है, तो 50% ऑफ इंटरेस्ट को सेल्फ ऑक्युपाइड में देंगे और उसको सर 2 लाख से कंपेयर करेंगे तो 100%। हाँ तब ठीक है सर। सॉल्यूशन, हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर अब्दुल। भाई अब्दुल क्लास में हो ना नहीं हो? यस सर। तुम्हारा प्रॉब्लम तुमने क्या किया है? क्या रे? हाँ से सुन रहे। सो रहा है ना केवल तो? नहीं मार मार के ना तुम थप्पड़ दूंगा। हाउस 1 क्या होगा? लेट आउट, कहां पर हाउस है? रांची में, ओके। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स net annual value less deduction under section 24, 30% of NAV, interest on loan, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं दिया है तो कोई सवाल ही नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस 1,
So working note 1, gross annual value, house 1, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, देखो म्युनिसिपल टैक्स दे दिया है एट द रेट ऑफ 10%, 15,000, और ये फ्लैट रांची में था, यस और नो? बगल में लिख Yes, दो sir. रांची, मतलब कोलकाता दिल्ली मुंबई नहीं है। इनटू कितना परसेंट था? 10% म्युनिसिपल टैक्स नहीं बोलता, %10, so 100 by 10, फेयर रेंट इंडिकेशन बोली दिया है, दोस्त को भाड़ा में दिया था अप टू 31/1/2021 दोस्त को भाड़ा दिया था, और देयर आफ्टर लेट आउट 15,000 में, तो 15,000 में लेट आउट है, तो पर मंथ 15,000 उसका फेयर रेंट बन सकता है। 15,000 इंटू रुपीज 1,12 मंथ, तो फेयर रेंट 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट ने नहीं दिया है, RER, हायर ऑफ द टू, higher of the GMV and fair rent, 1,80,000 done. Rent received, दोस्त को दिया था टोटल 11 महीना, हाँ पूरा 11 महीना दोस्त को दिया था, 11 नहीं 12 महीना, तो दोस्त को दिया था ₹10,000 into 12 months plus ₹15,000 into 2 months। गलती मैंने जो किया, यहाँ 12 नहीं होगा, 10 होगा। 10 मंथ होगा। कितना होगा? 1,30,000। तो वो क्या रीजनेबल एक्सपेक्टेंस से ज्यादा है ना कम है? कम है। देन RER, वैकेंट पीरियड रेंट, वैकेंसी पीरियड, बोलो वैकेंसी पीरियड रेंट कितना होगा? सर वैकेंसी पीरियड का दिन का तो सवाल ही नहीं है, पूरा साल है। वैकेंट पीरियड नील, ओके। तो एप्लीकेबल प्रोविजन अंडर सेक्शन 23(1), तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ, अगर वैकेंसी नहीं है तो हायर ऑफ रेंट रिसीव एंड RER, दैट इज 1,80,000। समझ में आया? अगर वैकेंसी पीरियड रहता और उसके लिए होता तो एक सवाल था चेक करना, लेकिन यहां पर तो वैकेंट पीरियड ही नहीं है, तो चेक क्या करूंगा? तो इट इज ऑलवेज 1,80,000 विच एवर इज हायर। वैकेंट पीरियड रहेगा तो तभी सवाल आएगा, नहीं रहेगा तो नो क्वेश्चन। 1,80,000, तो 1,80,000 15,000 1,65,000, NAV कितना? 30% ऑफ 1,65,000 1,65,000 into 49,500 49,500,
इंटरेस्ट ऑन लोन सर कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? 1,15,500. 1,15,500. 500. अब हाउस 3 टूटा बाद में आप लोग करेंगे। हाउस 3 यूज फॉर द बिजनेस, taxable under PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो नॉट टैक्सेबल, यहां पर टैक्सेबल ही नहीं होगा। हाउस 4 हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, and partly let out, मतलब बिल्डिंग को दो पार्ट में, मतलब ईआर में एक ही बिल्डिंग, ईआर में कुछ महीना सेल्फ ऑक्युपाइड, किस महीना लेट आउट, ये वाला केस नहीं है, मतलब 23 का केस नहीं है, ये पूरा बिल्डिंग का एक फ्लोर लेट आउट, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होगा? एक काम करते हैं, हाउस 2 का सेल्फ ऑक्युपाइड डायरेक्टली लिखते हैं, एनुअल वैल्यू स्ट्रेट वे में नील, म्युनिसिपल टैक्स को सवाल ही नहीं है, लेस इंटरेस्ट on loan under section 24 subsection B, बोलो सर मुझे तो करना पड़ेगा। चलो जी, मुझे लग तो नहीं रहा होगा और नहीं होगा। वर्किंग नोट टू इंटरेस्ट, कोई बोल सकता है? फिगर तो कोई भी नहीं बोल रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का डेट नहीं बोला, तो जिस दिन लोन लिया है उस दिन स्टार्टेड 1/6/2018, 1/6/2018 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, of 1/6/2019 loan taken 1/6/2018 लोन का अमाउंट 40 lakhs into 12%, बाप रे, Yes, sir. 40 lakhs into 12%। Yes, sir. तो बोलो कितना आएगा? पीसीपी पीरियड 1/6/2018 to 31/3/2018, that is equal to how much? 2019. 19, how कितना month? 10 6, months. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 months. PCB interest 40 lakh into 12% into 10/12. How much? 4 lakh. Current year का interest 40 lakh into 8%. 4,80,000.
सर वो लोन रीपे कर दिया है सर, चेक करिए। 9/12, हाँ सर, लोन रीपे कर दिया है। He repaid entire loan 31/12/2021, 31/12. Okay. Loan repaid. Whole cup 31/12/20. 21. ना 2020. 20 होगा, not 21. तो सर करंट ईयर 9 months का होगा इंटरेस्ट। बोलो। 4,40,000। नो सर, 3,60,000 होगा। Current year qualifying amount कितना percentage? 50%, because let out portion, yes or no? यस सर। Self occupied portion, self occupied house property, तो कितना होगा बोलो? 50%, मतलब 3,60,000 into 50%, how much? 1,80,000। 1,80,000। और करंट ईयर में 4 लाख, उसका 1/5, 80,000, उसका that is 40,000। 80,000 into 50%, that is 40,000. Total 2,20,000। total कितना? 2,20,000 सर। 2,20,000। स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है? ऑल कंडीशन सेटिस्फाई तो 2 लाख। डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड कितना? 2 लाख। क्लियर? बाकी और मुझसे अभी नहीं हो सकता, सर का क्लास है। आप लोग बाकी घर में कीजिएगा। बस सर यही देखना था सर, बस। इनकम फ्रॉम हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड, सिमिलरली हाउस टू लेट आउट, बाकी सब 50% अनुसार करना। 50% सेल्फ ऑक्युपाइड था, ये भी 50%। ये पार्ट आप लोग खुद कर लेना। डन? यस सर। चल।